taking time out to talk about this important enough topic. And particularly, I would like to thank all of you to take your time, to personal time out during the month of Ramzan, because I really feel that over the weekend it's our family time and commitments. So if you are taking time out, it shows that you are committed with Tech Titans and that you are committed with your career opportunities and development. So thank you so much. The man behind and enablers behind for this beautiful, wonderful get-together. So thank you, Saqib and enablers, for sponsoring Tech Titans monthly meetup. And with this, I would like to call Mr. Saqib Azhar particularly on stage to talk about that how enablers became so much important for the e-commerce industry, and he is the man behind the revolution in e-commerce business in Pakistan. With a good round of applause, Saqib, please. Assalamu alaikum to all of you. This is the first time actually I attended Tech Titans. I was looking into के बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज़ को कर रहे हैं. But I came to know about this idea and it's really amazing. Basically, enablers, I don't call enablers as an organization. I call this as a movement. It's a tahreek basically, जिसमें people are not just actually learning things, but as well as developing their vision. बहुत सारी यहाँ पर यूथ पाकिस्तान में इस वक्त ऑलमोस्ट 17,000 लोग एक दिन में 18 साल के होते हैं और 62 लाख लोग एक साल में 18 साल के हो रहे हैं. So there are actually hardly any employment opportunities available in Pakistan. So enablers का journey was actually to break up this chain कि जो इतने ज़्यादा हाथ फैलाने वाले लोग हैं, तकरीबन 62 लाख पर ईयर, क्या इतनी जॉब्स हैं? डेफिनेटली नहीं है इस मुल्क में. तो मकसद था कि क्रिएट हाथ देने वाले एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट किया जाए, बिजनेसेस को क्रिएट किया जाए जो कि आगे कामयाब होकर आगे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ और अपने साथ में ला सकें. मैं 15 साल इंग्लैंड रहा और वहाँ पर मैंने अपनी एजुकेशन भी की और बहुत सारी और चीज़ें भी की और ख़ुद भी कॉमर्स सेलर बना और कामयाब हुआ और फिर इस मुल्क में आया मैं 2018 में. और तकरीबन 5 साल से हाउ वी बिकम रेवोल्यूशनाइजिंग दिस इंडस्ट्री वाज कि it was missing, it was a problem here. Problem statement थी कि there wasn't any vision behind of the youth what actually they're doing. There wasn't anything which actually making them to think that they can do their own business. वो एक rat race के पीछे लगे हुए. तो वो physically चीज़ें नहीं मौजूद थी, तो we started setting up things in the ground to share our vision, to share our mission, and also to discussing the international markets, like how while sitting in Chicha Watni you can sell in Scotland, कि while sitting in Gojra you can sell in America, right? बाहर जाने की ज़रूरत नहीं. So basically you can earn in dollars. Purpose of this platform is not only to build connections and providing opportunities for people to connect with each other and exchange so many opportunities in personal and professional capacity. The purpose is to share knowledge like this meetup. So every month we have different topics which are globally recognized and hot topic to talk about and learn from international practices from different panels. So that's the core purpose, apart from the connections that we develop from these kind of platforms. So core purpose is to learn every month something new, exchange school of thoughts, learn best practices from global leaders and learn from one another. We all are from different industries, different companies, so I think it's a diverse kind of background that allows us to learn from one another. That's the best thing we can do by providing such kind of platforms, particularly to our youngsters. So once again, thank you so much for being here. So just to start the conversation, if I take a first question from you, Mirwa, what do you think in terms of what is retention and why it has become more important than recruitment? Alright, thank you so much, guys. When actually I got this invitation of the topic, I was really thrilled to actually see that, okay, now we are discussing about the fact that,
it has become more important as compared to recruitment. However, I think I remember the time back in 2012 or 13 where I put up a presentation in front of my management because they were very keen in terms of, letting people go, and then, maybe we can hire a few again. And I, in front of the management. So I think it has an impact greater than we actually think generally in HR and other, like in part of the leadership aspect as well. So retention, as we know, is the ability of any organization to retain people over a certain period of time. And organizations are actually known with the possibility of how long an organization is keeping their employees. If you get to know that a person is working within an organization for 5 years long, 6 and 10, instantly you create a positive feeling about that organization that they must be doing something good. That is the reason they're able to retain their employees. First of all, I'm a lawyer. And I want to say that from the outset. My training is in law, and then a bit of it is specialized in labor and employment relations. So I am very, very honored and privileged to be sitting here amongst a panel of individuals who are very passionate about developing the youth, providing opportunities, particularly in the growing space of IT, technology, AI. And then also they're passionate about sharing their experiences. And I want to thank Hassan, who's standing at the back, for engaging me in this conversation. Now on your question, you're absolutely right. BAT is a mammoth of an organization. British American Tobacco has been in the industry for a very long time and has presence in countries that are spread across the globe. And when I am in meetings with people, often it starts off with an introduction where people say, we've been here for 20 years, 25 years, 15 years. And then you've got people who've been in the organization for 2 months, 3 months. I was one of them when I said, I've only been here for 6 months. And I think that's the important part. It gives you a sense of purpose and a sense of belonging, because anybody who has thought to contribute their time, their efforts to a company for such a long time, there has to be something that's working. To answer your question, one does not retain blindly. The first thing is believing in your recruitment policies. If you've got a robust recruitment process, you know you have hired the right people for the right positions. So if you have a strong recruitment policy, individuals who are committed to finding the very best talent, who are going to thrive in the roles that they have maybe applied for, but maybe are not the best, so you shift them around. So if you've got that first piece sorted, retention becomes easy. Before we talk about strategy, I would like to discuss a theory with all of you जो अपना एक कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं. ये वो एक चीज़ है जो मैंने पढ़ी थी many years ago और हर रोज़ मैं उसको प्रैक्टिस करता आया, एक आदमी से लेके 250 लोगों तक. और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा. यू कैन कॉल देम एंकर्स, रोवर्स एंड राइडर्स. इमेजिन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक शिप है. एक शिप पे एंकर्स होता है जो उसको होल्ड करके खड़ा होता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा कभी. राइडर्स होते हैं जो चुप करके बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना. रोवर्स हैं जो उसको पुश कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं. सिर्फ चंद थ्योरीज आपने लगानी है, इसमें रिटेंशन, स्मार्ट रिटेंशन और टर्मिनेशन सब कवर हो जाएगा. आपने अपने राइडर्स, रोवर्स और एंकर्स को आइडेंटिफाई करना है. उसके लिए पॉलिसीज़ हैं, टैक्टिक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, उस तरफ जाएंगे. थोड़ी कन्वर्सेशन लंबी हो जाएगी, बट यू कैन डू द गूगल. आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया, आपकी पूरी एफर्ट, जो पहली एफर्ट जाती है वो जाती है आपके एंकर्स पे. गेट रिड ऑफ योर एंकर्स स्ट्रेट अवे. एक दिन का भी मार्जिन नहीं, गेट रिड ऑफ देम. आपको पता चला कि कोई बंदा एंकर्स की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, डोंट इवन वेट. देन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज बनाओ राइडर्स के लिए, टू कन्वर्ट देम इनटू रोवर्स. राइडर्स आपका कल को आपका रोवर बन सकता है और वो एंकर भी बन सकता है. तो आपकी स्ट्रेटजीज फोकस होनी चाहिए आपके राइडर्स पे. जब राइडर्स आपका रोवर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसको एम्पावर करके अपने विजन पे अलाइन करके फ्री करते हैं. लेट हिम ड्राइव द शिप. बट आपकी जो 70% एफर्ट्स होती हैं वो राइडर्स पे जा रही होती है. आइडेंटिफाई योर राइडर्स कि कौन लोग हैं जिनके अंदर अल्लाह ने पोटेंशियल रखा है, ऐसी सलाहियतें रखी हैं जो आप ट्रेनिंग से नहीं डाल सकते. देयर आर थिंग्स दैट यू कैन ट्रेन, आप उनको सिखा सकते हो. देयर आर थिंग्स जो आप उनको टीच नहीं कर सकते.
अगर वो अल्लाह ने उनको दी हैं तो आपकी सारी पॉलिसी, सारी एफर्ट्स उन पे लगनी है, वहाँ से आप उनको रिटेन करेंगे एज अ रोअर। यू कैन नॉट रिटेन पीपल एज एंकर। आप जब किसी कंपनी को लीड करते हैं तो आपको कई चैलेंज का सामना करना पड़ता है। किसी में आप ट्रेनिंग हासिल करते हैं कि आपकी कंपनी की ज़्यादा बेटर चीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास शुरू से स्किल्स थे ट्रेनिंग के, और मुझे आज तक यही पता चला कि अगर आप उनको ट्रेन बेटर कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ी बेट है, आप उनको रिटेन कर सकते हैं। आप पता क्या, मैंने भी तुझसे पहले सुना इरफान साहब के पास माशाल्लाह इनके पास रिटेंशन रेट जो है 90% है। एग्जैक्टली मेरे पास भी ऐसी है। मेरे पास सिर्फ 2 लोग मैंने निकाले हैं पिछले 10 साल में। अब 2 लोग निकाले क्यों थे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली स्टोरी मैच करती थी, एथिकल रीजन थी, बाकी नहीं निकाले क्यों नहीं थे कि हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग उनकी भी साथ साथ जारी रहती है। हम वीकली उनको एक लेक्चर डिलीवर करते हैं ताकि इनके अंदर पोटेंशियल जो है इनको देखें और डेफिनेटली उनको मोटिवेट करें, उनको आगे लेके चलें। अब सूरत देखने वाली ये है कि हमने उनको ज़्यादा पैसों के लालच से रिटेन नहीं कर सके। आप देखिए फ्रीलांसर्स है, फ्रीलांसर जो आईटी में थोड़ा सा काम करते हैं, पैसे चिक मारते हैं, कैसे रिटेन करेंगे आप? उनको लिबर्टी मिलती है। आप उनको किसी जॉब पे उनको इनके बाउंड्रीज के अंदर रखना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो नज़र आता है वो ये है कि क्या वो आपके साथ रह के उसको कैरियर सिक्योरिटी मिलती है। कैरियर सिक्योरिटी के साथ उसकी ट्रेनिंग है, वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। एक बात यह है कि किसी भी बिज़नेस के स्कूल में आपको बिज़नेस प्रॉपर्ली सिखाया नहीं जाता। आपको ये बिज़नेस सीखना होता है अपने बॉस से। अगर वो बॉस आपको अपने साथ में लेके चल रहा है, आप सिर्फ की बैक कर सकते हैं। अगर ये ऐसा मुमकिन है तो रिटेंशन टाइम बढ़ जाएगा। हमारे इदारे में यही काम होता है, हम सबको मूव करते हैं, हम सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं और वहाँ पे जज करते हैं ट्रेनिंग के अंदर कौन सा बंदा क्या कर रहा है। 10 बिट स्टार्ट करने के पीछे मेरा विजन कभी बिजनेस नहीं था। आई एम अ फर्म बिलीवर कि रिस्क जो है वो मिलना ही मिलना है और जिसके हिस्से का जो रिस्क है वो उस तक पहुँच ही जाना है। और अगर आपका ये बिलीव हो तो फिर बिज़नेस जो है वो आपके लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बिज़नेस नहीं रहता। तो सेकेंडली जो मेरा विजन था कि मैंने अपनी जॉब डेज़ के अंदर जो भी डिफ़िकल्टीज़ फेस की, एटलीस्ट मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकूँ जो कि जिन एम्प्लॉइज़ को मैं हायर करूँ उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े। और इस विजन के साथ 10 बिट स्टार्ट की थी और फिर ओवर द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी मैं फॉर्चुनेट इनफ था या ज़्यादा प्रिविलेज था कि मुझे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा मिला, मुझे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिली, मुझे वर्क इन्वायरमेंट्स ऐसे मिले कि मैंने कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस की नहीं है। और जो हमारी करंट लॉट है, और हम जनरली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हर दूसरी गली के अंदर 100 स्कूल खुला हुआ है जो कि आईटी की ट्रेनिंग दे रहा है और हमारे पास टैलेंट की कमी है और लोग आ नहीं रहे हैं। अब सिनेरियो ये है कि हमने जो टैलेंट हमारे पास अवेलेबल है उसके साथ वर्क करना है और उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हमने उनके लिए क्रिएट करनी है। तो रिटेंशन में एक फैक्टर ये है कि आपको जो टैलेंट मिल गया है उस टैलेंट को ही आपने पॉलिश करना है। अब उसमें मैं हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को ये बात कहता होता हूँ कि यू विल ऑलवेज फाइंड अ जॉब हु विल बी बेटर पेइंग देन व्हाट वी आर पेइंग। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री और कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ज़्यादा अच्छा पे कर देगा। तो जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है वो फैक्टर नहीं हो सकता रिटेंशन के अंदर ऑब्वियसली, तो फिर अदर फैक्टर्स आ जाते हैं। उन फैक्टर्स के अंदर जो एक बेसिक चीज़ है वो कल्चर है और आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बॉन्डेड कितना है। मैं ओपन डोर पॉलिसी पे बिलीव करता हूँ, हमने ओपन डोर पॉलिसी इंप्लीमेंट की भी है। मेरे एम्प्लॉयज़ आके मेरे साथ 2 आवर्स के सेशंस करते हैं और वी जस्ट नॉट ओनली टॉक अबाउट वर्क बट उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी इश्यूज़ जो कि बियॉन्ड वर्क हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरी 33-34 ईयर्स एज है, कुछ मेरा एक्सपोजर है, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, मैं उनको गाइड कर लेता हूँ। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा के चले जाते हैं और उससे ये होता है कि एक लिसनिंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम उनके इश्यूज सुन भी रहे हैं, उनको एड्रेस भी कर रहे हैं, उनको लगता है कि एक्चुअल फैमिली है। ये बुकिश टर्म्स में कहना कि हम एक फैमिली हैं और फैमिली का पार्ट है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट दैन एक्चुअली बीइंग अ फैमिली। After listening all of you, I deserve कि हर कंपनी CEO, बॉस, टीम लीड और HR डिजर्व करती है आप लोगों जैसा। बट हम भी कुछ अच्छे सेट्स आपके साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में सेट कल्चर को कैसे डील किया जा सकता है।
जहाँ पे डिपेंडेंसी पीपल पे होगी ना, वहाँ पे हमेशा इश्यूज होंगे। हम लोग अभी बैठे हुए इकट्ठे बात कर रहे थे, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स ए प्रोसेस लेड ऑर्गेनाइजेशन रादर देन ए पीपल लेड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सेकेंड चीज़ है लोगों की एम्पावरमेंट, यानी कि वो खुद कितना कंफर्टेबल फील करते हैं कुछ इश्यूज रेज करने में, चैलेंजेस को टैकल करने में। सेकेंड है उनके एम्पावरमेंट, यानी कि आप दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, कंपनीज कितनी ट्रांसपेरेंट है। और थर्ड चीज़ जो होती है वो आपका कॉन्फिडेंस है। सो मेरे ख्याल से अगर हम स्टार्ट करें तो अगर आप एक कंपनी में हैं जहाँ पे किसी इंसान के पास आपको जाना है या आपकी सारी चीज़ें हॉल्ट कर जाती हैं बिकॉज ऑफ 1 or 2 people, there's a problem. माशाल्लाह आज बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था टेक टाइम ने जो किया यहाँ पे। इस इवेंट से बहुत फ़ायदा पहुँचा। यहाँ पे जो दोस्त यहाँ पे एज ए पैनलिस्ट आए थे इंक्लूडिंग मी, इनको भी बड़ा कुछ नया लर्न करने को मिला। जो बिज़नेस को मॉडर्न चैलेंजेस हैं, ऐसे चैलेंजेस को मीट करने के लिए ये एक इवेंट था जिसमें सब लोगों ने अपने आइडियाज़ दिए और हर बंदे ने नई से नई चीज़ में सीखी। और ये मेरे ख्याल में सब लोगों के लिए अच्छा था। जो न्यू कमर थे HR के अंदर, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं इनके अंदर भी, यानी कि सब के लिए कोई ना कोई चीज़ इसमें कोई टेक भी उनको अच्छा था। अब फ़ायदा इसका ये है कि ऐसे और कई इवेंट्स होने चाहिए जो लोगों को इस तरह से जो बदलाव आ रहा है टेक्नोलॉजी में, बिज़नेस में, ओवरऑल हर जगह पे। फॉर एग्जांपल आज का मौजूद HR के अंदर HR का था, लेकिन अगर HR का ही बदलाव आ रहा है तो हम इसको मीट करने के लिए दूसरों की राय ले लें। जी, आज का जो टेक टाइटन्स का ये कॉन्फ्रेंस थी, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द पीपल एक्चुअली, बिकॉज कनेक्टिंग टेक with the people is really something we need to encourage more. पाकिस्तान में इस तरह के इनिशिएटिव्स बहुत कम हैं क्योंकि पाकिस्तान की यूथ को कनेक्ट करना, टेक जिसकी तरफ अब दुनिया जा रही है, इज़ गोइंग टू बी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द पीपल। इसमें हम ये नहीं देख सकते कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। हर बंदे को अपने इनिशिएटिव्स लेने होंगे। और आज बहुत की टॉपिक्स को डिस्कस किया गया कि किस तरह से लोग एक दूसरे की हेल्प करके, कोलैबोरेट करके, एक इन्वायरमेंट और एक कल्चर क्रिएट करके इस इंडस्ट्री को मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा उठा रही है एंड द पीपल इन पाकिस्तान नीड्स टू इंश्योर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें और इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए कि किस तरह से टेक इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की इस वक्त बूमिंग इन्वायरमेंट में मौजूद है, उसको मज़ीद कैसे बूस्ट किया जा सके। आई रियली फील थैंक यू फॉर द पीपल जो आज यहाँ अनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आए। और अनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का जैसे मकसद है कि कनेक्टिंग एकेडेमिया विद इंडस्ट्री, और ये उसकी एक काविश है एंड वी रियली अप्रिशिएट कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इस इंडस्ट्री के साथ वाइल दे आर डूइंग एजुकेशन जुड़ सकें। सो थैंक यू फॉर एवरीवन हु मैनेज्ड टू कम इन टुडे।